Hello friends, welcome to economics lecture. Myself Kaur ma'am. In the last lecture we have started with a new chapter 3b, that is the elasticity of demand. In that chapter we have discussed meaning and definition of elasticity, types of elasticity and types of price elasticity of demand. In today's lecture we are going to see different methods used to calculate price elasticity of demand. But before starting with the methods, let's revise what do you mean by elasticity. Elasticity means responsiveness of change in quantity demanded to change in price. In simple words, what do you mean by elasticity? It means the extent to which quantity demanded changes, that is rises or falls due to change in the price of a commodity. That means जब भी कमोडिटी के प्राइस में कुछ भी चेंज होगा और वो चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होता है, that is the elasticity of demand. Now there are different methods given to calculate the price elasticity of demand. Professor Marshall has given 3 methods to calculate price elasticity of demand. Let's discuss one by one. Very first is the ratio or percentage method. Now ratio means quantitative relation between two amounts. Now ratio or percentage method is also known as arithmetic method. रेशियो मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल. ये मेथड जो है प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था. ना अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसको डिवाइड करेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट कि व्हाट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी it is. Now let's see what is the formula and how mathematically we have to write that formula. Elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. जब हम mathematically ये formula को लिखेंगे तो देखें कैसे लिखेंगे. Elasticity of demand is equals to change in quantity. Triangle denotes change. Okay. Change in quantity upon quantity divides by change in price upon price. When we put it into multiplication form, it gets reciprocate. Change in quantity upon quantity into price upon change in price. Now using this formula, we have to calculate price elasticity of demand in ratio or percentage method. Now with the help of example, let's see how we can calculate elasticity. Now in this numerical example, you can see they have given you one schedule. First column is price, second column है quantity demanded का और third column है formula का. अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि ओरिजिनल प्राइस है 20 रुपीज़ और न्यू प्राइस है 25 रुपीज़. अभी ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस में कितना चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है? 5 का. क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल है 10 और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है 9. इनमें हमको चेंज देखने के लिए मिल रहे हैं 1 यूनिट का. अभी ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ के 20 से 25 हो गया है. तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई है 10 से 9 पर. तो डिमांड में जो चेंज है वो 5 का है, सॉरी प्राइस में जो चेंज है वो 5 का है और डिमांड में जो चेंज है वो 1 है. अभी ये वैल्यूज को जब हम फॉर्मूला में डालेंगे तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. Now formula is equals जो है elasticity of demand is equals to change in quantity upon quantity into price upon change in price. अभी quantity में कितना changes है? 1. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारी? 10 into प्राइस कितना है? दैट इज ओरिजिनल प्राइस कितना है? 20 और प्राइस में चेंज कितना है? 5. 1 into 20 20, 10 into 5 50. 20 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.4. Now 0.4 is less than 1. So elasticity of demand यहाँ पर क्या है? 0.4 which is less than 1. It means elasticity of demand is relatively inelastic. Relatively inelastic का मतलब होता है जब प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो और उसके कंपैरिजन में जब डिमांड में कम चेंज देखने के लिए मिलता है उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं. और हमारे एग्जाम्पल में हमारा जो आंसर आया है वो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0.4 विच इज लेस देन 1 विच शोज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक.
सो इन दिस वे ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम ये मेथड में इलास्टिसिटी कैसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, रेशियो और परसेंटेज मेथड, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था. ये मेथड को अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं. ये मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैथमेटिकली हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, एंड यूजिंग द एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और हमारा जो गिवन एग्जांपल है उसमें इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. सो इलास्टिसिटी कैसी है इसकी? रिलेटिवली इनइलास्टिक. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड जो है इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का, उसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं. ये मेथड भी प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया है. नाउ इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज कंपेयर्ड. अब यहाँ पर हमको इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? ये मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज होने से पहले कितना था और टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज होने के बाद में कितना है, उन दोनों को कंपेयर करके हम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे. लेकिन अभी टोटल एक्सपेंडिचर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है refers to the product of price and quantity demanded. Product means multiplication. That is, we have to multiply price by quantity demanded. Price और quantity demanded को जब आप multiply करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा that is the total expenditure. ये मेथड को यूज करके टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड में हमको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है. ओके, अभी वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हमको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है. अभी यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड है 6 यूनिट्स. तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 60. क्योंकि आप देखेंगे कि स्केड्यूल में आपको फर्स्ट कॉलम प्राइस का दिया है, सेकेंड कॉलम क्वांटिटी डिमांडेड का दिया है, थर्ड कॉलम इज टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर, जहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इंटू क्यू. और लास्ट कॉलम में हमको दिखाया जाएगा कि इलास्टिसिटी कैसी है. अभी यहाँ पर प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 10 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 6, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आउटले कितना आ रहा है? 60. अभी प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 टू 20, प्राइस बढ़ गया है 10 से 20 और डिमांड कम हो गई है 6 से 5. तो जब हम इनका टोटल आउटले कैलकुलेट करेंगे 20 इंटू 5 दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो हमारा आंसर आएगा 100. नाउ इन दिस एग्जांपल वी कैन सी कि टोटल आउटले बिफोर द चेंज इन प्राइस इज लेस देन द टोटल आउटले आफ्टर द चेंज इन प्राइस. या फिर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइस चेंज होने से पहले जो था वो कम है और प्राइस चेंज होने के बाद में वो क्या हो गया है? बढ़ गया है. तो यहाँ पर whenever after a change in the price of a commodity, if total outlay is greater than the original expenditure, then elasticity of demand is greater than 1. इस केस में इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, जिसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके, सो व्हाट इज दिस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? या यहाँ पर ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमारी इलास्टिसिटी कैसी है? व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस में कुछ भी चेंज होता है, एंड इफ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, टोटल आउटले अगर हमारा बढ़ जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हम कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन द टोटल आउटले बिफोर द चेंज इन द प्राइस एंड आफ्टर द चेंज इन द प्राइस. और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि आफ्टर द चेंज इन प्राइस टोटल आउटले बढ़ गया है और इसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1 है. Now let's see the second example. Now in this second example also you can see there is a schedule. Price, first column is price, second is quantity demanded, third is total outlay and last is your elasticity of demand दिखा रहा है. total outlay का formula दिया हुआ है price into quantity. Now in this example we can see कि original price is ₹50, okay, and quantity demanded कितना है? 2. okay, quantity demanded कितना है? 2. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल आउटले आएगा 100. ओके, अब यहाँ पर प्राइस जो है बढ़ के 50 टू 60 हो गया है.
प्राइस राइजेस फ्रॉम 50 to 60। अभी प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड कम हो गई है फ्रॉम 2 to 1 यूनिट। तो जब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे 60 into 1 तो हमको मिलेगा 60। अभी हियर इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी कि व्हेन द प्राइस वाज ₹50 and the quantity demanded was 2 units, तो हमारा टोटल आउटले था 100। एंड आफ्टर अ चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 50 to 60 पर यूनिट, तो हमारी डिमांड कम हो गई है 2 to 1। तो हमारा टोटल आउटले हो गया है 60 into 1 which is equals to 60। Now in this example we can see कि total outlay after a change in the price of a commodity is less than, मतलब has reduced from 100 to 60। That is, total outlay before the change in the price was more, and after the change in the price total outlay falls from 100 to 60, which shows कि elasticity of demand is less than 1, that is our demand is relatively inelastic demand। okay? तो यहाँ पर हमारी elasticity कैसी दिखा रहा है? Elasticity of demand is less than 1, which shows कि it is a relatively inelastic demand। अभी यहाँ पर हमको ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि when with a given change in a price of a commodity, प्राइस में जो भी चेंज आया है उसकी वजह से अगर टोटल आउटले डिक्रीजेस, टोटल आउटले कम हो जाता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। ओके, नाउ लेट्स सी विद द थर्ड एग्जांपल। नाउ थर्ड एग्जांपल आल्सो यू कैन सी अ शेड्यूल, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल आउटले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस है 30 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड है 40, तो हमारा टोटल आउटले कितना आएगा या टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 30 into 4 comes to 120। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 30 to 40 यूनिट्स, तो डिमांड भी कम हो गई है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है फ्रॉम 4 to 3 यूनिट्स। नाउ इन द यहाँ पर अगर हम टोटल आउटले कैलकुलेट करेंगे तो 40 into 3 which again comes to 120। Now in this example we can see that even after a change in the price of a commodity, total outlay before the change and total outlay after the change is same। मतलब कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर और न्यू आउटले जो हमको मिला है वो क्या है? सेम है। तो इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर वेन एवर प्राइस फॉल्स और राइजेस, प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इफ देयर इज नो चेंज इन द टोटल आउटले, टोटल आउटले में कुछ भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, टोटल आउटले अगर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल यूज करके हमने टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा कि कैसे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड? दिस मेथड इज आल्सो गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करना है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी बाय कंपेयरिंग the change in total expenditure before the change in the price and after the change in the price। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्राइस चेंज होने के बाद हमारा टोटल आउटले बढ़ गया है फ्रॉम 60 to 100। सो वेन एवर टोटल आउटले इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। एंड वेन एवर टोटल आउटले डिक्रीसेस आफ्टर अ चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर टोटल आउटले कम हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। and if there is no change in the total outlay even after a change in the price, total outlay price change होने के पहले भी उतना ही था, बाद में भी अगर उतना ही है, तो यहाँ पर elasticity of demand will be equal to 1, which is unitary elastic demand। सो इन दिस वे टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द थर्ड मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ दिस मेथड to calculate elasticity is also given by Professor Marshall, which is also known as पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, दोनों भी नाम से ये मेथड को जाना जाता है। अभी ये मेथड
जो है इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि पहले के जो दो मेथड हैं, द रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड, आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। यहाँ पर डिमांड कर्व को यूज करके डिमांड कर्व पर कोई ना कोई पॉइंट लेकर के इलास्टिसिटी कैलकुलेट हम पहले वाले दो मेथड्स में से नहीं कर सकते। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने ये थर्ड मेथड दिया है जिसमें हम डिमांड कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सी व्हाट दे आर टेलिंग, at a given point or at any point on the demand curve, elasticity of demand is measured with the help of the following formula। अभी यहाँ पर डिमांड कर्व पर अगर हमको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या फॉर्मूला है? Point elasticity of demand is equals to lower segment of demand curve below the given point and upper segment of the demand curve above a given point. That is the lower segment upon upper segment. Lower segment below given point and upper segment above given point. Okay, now using this formula we have to calculate price elasticity of demand। अभी ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड में दो तरह की डिमांड कर्व हमको देखने के लिए मिलेगी, लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अभी लीनियर डिमांड कर्व किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जो हमको डिमांड कर्व मिलता है। लेट्स सी व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। व्हेन अ डिमांड कर्व इज लीनियर और स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द y एक्सिस एट ए पॉइंट एंड x एक्सिस एट b पॉइंट। अभी यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखेंगे कि a और b इज द डिमांड कर्व जो x एक्सिस पर b पॉइंट पर टच हो रहा है और a एक्सिस पर y एक्सिस पर a पॉइंट पर टच हो रहा है। ओके, अभी एट पॉइंट a elasticity of demand is equals to infinity and at point B elasticity of demand is equals to 0। बट बाकी के पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी कैसी है? यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करके हम अलग अलग पॉइंट्स पर देखते हैं कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी वी आर गेटिंग। अभी यहाँ पर ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी इज अ डिमांड कर्व, y एक्सिस पर प्राइस दिखाया गया है और x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड शो की गई है। ओके, नाउ यहाँ पर डिमांड कर्व का जो लेंथ यहाँ पर कंसिडर किया है वो है, हमने एज्यूम किया है कि वो 8 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट्स पर लेकर के देखेंगे कि हमारा इलास्टिसिटी कैसा है। एट पॉइंट P, सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट P। हमारा एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पॉइंट P पर पीबी लोअर सेगमेंट क्या है हमारा? पीबी, और अपर सेगमेंट क्या है? पी के ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज अपर सेगमेंट और पी के नीचे वाला जो है वो लोअर सेगमेंट है। तो लोअर सेगमेंट पीबी अपॉन अपर सेगमेंट पीए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि पी जो है आपके डिमांड कर्व को हाफ में डिवाइड कर रहा है। इट इज डिवाइडिंग अ कर्व फ्रॉम द सेंटर, दैट इज हाफ डिमांड कर्व इज अबव द पॉइंट पी एंड हाफ डिमांड कर्व इज बिलो द पॉइंट पी। और अगर हमारा ये डिमांड कर्व जो है 8 सेंटीमीटर है तो पी बी is also 4 centimeter and PA is also 4 centimeter। तो 4/4 is equals to 1। 4 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट P पर हमारी डिमांड कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक क्यों है? बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ इन द सेकेंड पॉइंट एट अनदर पॉइंट लेट्स सी कि हमारी इलास्टिसिटी कैसी है। अभी नाउ एट पॉइंट P1। नाउ पॉइंट P1 पे लोअर फॉर्मूला क्या है? पॉइंट मेथड से अगर हमको फॉर्मूला से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अभी P1B इज योर लोअर सेगमेंट एंड P1A इज योर अपर सेगमेंट। सो P1B अगर हम देखेंगे आपके डिमांड कर्व को, ये जो है A और B डिमांड कर्व, यहाँ पर PB की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और सॉरी P1B की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और P1A की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पर हम लोअर सेगमेंट कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर और अपर सेगमेंट है हमारा 6 सेंटीमीटर। जब हम इसको 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.33। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट P1 पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? लेस देन 1 है। दैट इज डिमांड इज रिलेटिवली
इनइलास्टिक। सो यहाँ पर P1 पॉइंट पर हमारी डिमांड कैसी है? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड यहाँ पर हमको मिल रही है। Now let's see at point 2 elasticity कैसी है. Now at point P2, if we will see, the lower segment will be P2B and upper segment will be P2A. अभी P2B का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड P2A का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P2 पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, विच शोज कि डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो यहाँ पर हमारी डिमांड कर्व कैसे आएगी? रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पर हम ले करके डिमांड कर्व पर किस तरह से पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी को बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर हम पॉइंट ए पर देखेंगे और अगर हम पॉइंट ए से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, बिकॉज अपर सेगमेंट जो है यहाँ का 0 है। तो यहाँ पर हमारी डिमांड कैसी दिखेगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और अगर हम पॉइंट बी पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज लोअर सेगमेंट इज 0। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विल बी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज रिलेटिव इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ए पॉइंट पर हमारी कैसी मिलेगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो इन दिस वे पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड से यूज करके हमको जो हमारी लीनियर डिमांड कर्व है उसके ऊपर हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। नाउ इसमें हम नॉन लीनियर अगर डिमांड कर्व है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉन लीनियर डिमांड कर्व में देखिए कैसे दिया, व्हेन अ डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी कॉन्वेक्स का मतलब है कर्व शेप में, ओके? कर्व शेप में अगर आपको डिमांड कर्व देखने के लिए मिलता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। अभी यहाँ पर हमारे ये डिमांड कर्व है और ए बी हमने एक टेंजेंट बनाया है, दैट इज स्ट्रेट लाइन बनाई है जो पॉइंट ए और बी पर एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रही है। वाई एक्सिस पर ए पॉइंट पर और एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट पर। वाई एक्सिस पर हमने प्राइस दिखाया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड। अभी यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का? लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो द गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। अभी इन दिस केस ऑल्सो इफ वी विल सी के ए और ए बी जो है एक स्ट्रेट टेंजेंट है, ओके? और यहाँ पर ये जो डी डी है वो डिमांड कर्व है। अभी एट पॉइंट पी अगर आप देखेंगे, एट पॉइंट ई, सॉरी पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, ई बी और ई ए अगर हम इनको डिवाइड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला तो हमारा आंसर विल बी 1, ओके? और अगर हमारा आंसर विल बी 1 तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके? एंड इन अदर केस ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अगर ई बी जो है ई ए से ग्रेटर देन अगर हमको मिलता है तो यहाँ पर डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर थर्ड केस में ई बी इज लेस देन ई ए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, विच शोज कि डिमांड कैसी है? रिलेटिवली इनइलास्टिक है। So in this way, using these 3 methods, we have to calculate price elasticity of demand. एग्जाम में कोई भी 2 मेथड आपको पूछे जाते हैं फॉर 8 मार्क्स, और अगर एक मेथड पूछेंगे तो इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। और अगर 8 मार्क्स के लिए 2 मेथड्स आपको आते हैं तो दोनों मेथड इंडिविजुअली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।